Hello, my dear aspirants. A very good afternoon to all. So, we have joined in today again with our lovely session of English medium maths, right? So, maths and English for the exam is IBPS RRB. So, yesterday we have started a session on data interpretation. So, today it is class number 2 where we are going to learn the second type of DI. That is what? The bar graphs. Okay. So, let me tell you one thing, that bar graphs are easier than your line graphs. So I have started the session yesterday with line graph. So if you have any doubt, you can put it in the comment box. I will get back to you for sure. Okay, and the doubts will be taken in the next session. But for now, let us start the bar graph. Okay. Okay, let's start just a minute. Okay. So I welcome you all to official channel of Adda 24/7 Naughties in this lovely session of maths where we learn each and every basics to high level questions in English medium. Right? Chalo. So let's see a beautiful quote before starting the class. So the quote is, no country can really develop unless its citizens are educated. Exactly, right? So this is a very, it's obvious quote that education is very important, right? So the days are gone where you don't need education. Nowadays, education is a need and it is required each and everywhere, wherever you go, right? So it is a must that you follow education, and also we are targeting the exams. So for that, obviously, you must be educated, and also you must have some strategical knowledge about how to crack the exams. So that where you will get, you'll be getting out here in the classes. Okay. Okay. So these things I've already discussed yesterday. Okay. So generally you will have few datas and we have to interpret it. Okay. We see the data and based on that we give the answers. Easy. Okay. Okay. Then we have also discussed about bar graph, line graph, pie chart, table or tabular form, mixed, and also caselet DI. Okay. So yesterday we have completed the line graph. Okay, I'm sure you have gone through the session. So generally, let me tell you one thing, that in data interpretation, the most important topic that is required is your percentage. Okay, so most of the question in data interpretation are based on the percentage. Okay, how much increase, how much decrease, these are all percentage based. Clear? So I have also given a brief that how to find more than, less than, or how do you compare two percentages, right? So these things I've already explained. So you can go and see the session and make your concept clear. Okay. Okay, chalo. So these were the key concept that you must learn before starting data interpretation, right? So today, let me give a brief about your bar graph. So today we are going to learn bar graph. Okay, bar graph. Okay, talk less, do more, right? Let me get into the topic now. So bar graph. Okay, ये होता क्या है? So generally there are two divisions. You know, obviously you know this. So generally there are two number lines. ठीक है? This is your y-axis and this is your y-axis. है क्या नहीं? Mathematics का है. So here there will be some data given, data 1 suppose, okay, and this is suppose data number 2. ठीक है sir, this we know already, right, because we have already studied line graph. ठीक है, so data 1, data 2 will be given to you. Okay, but in line graph we have this kind of things. Okay, your dots are there, and based on this dot you have to see the data what is following in particular questions, right? But out here you will, instead of seeing this, you will see bars. Okay, bars like this. Okay, ऐसे दिखेगा तुम्हें. ठीक है, तो same thing, exactly same thing, but just that instead of the lines we are using bars to show the data like this. Okay, exact same होते हैं दोनों में, ज़्यादा difference है नहीं, just that bar graphs are easier to visualize. ठीक है, easily you can see the data by seeing the bar graph, but in line graph you have to be careful while taking the data. Clear है? Because you have to see, suppose you want to find this point, so you have to take the line there and you have to see exactly. Okay, and if the points are very close now, so it might happen that in exam you might get confused. Okay, examiner is good, then he would give you this kind of dotted lines or maybe a straight line so that you can easily get the data. But if the examiner is very cunning, then he will not give this line. Okay, this will be totally blank and you will have points like this. So it is very important for you to look carefully in line graph. But bar graph, it simplifies the thing for us. ठीक है, ऐसे आपको दिखेंगे bars. Okay, these are what? These are your bars. Clear है? Okay, that's it. बाकी तो कुछ नहीं है. ठीक है, and they will give you data. Suppose let me say that this is the years. Okay, this is the data for years. ठीक है, suppose this is let me say 2001, 2001, 2002, 2003, 2004 and so on. I hope you can understand. ठीक है, और यहाँ पे suppose दिया हुआ है maybe company sale, company का sale दिया हुआ है, maybe that particular company has sold how many things in, what are the interval of time, suppose 10, 20, 30, 40,
50, 60 and so on, right? And they will mention like this in 1000. Okay, in 1000, that means it is not 60, it is 60,000. Clear? So this thing I'm sure you know it. Yesterday also we have discussed, but still I'm just giving a brief because the session is totally meant for basic to advanced level, right? So this is how you see the bar graph. Now they can ask like what is the drop in sale from 2001 to 2002, like that they can give you the question, right? ऐसे टाइप के इजी क्वेश्चन दे देंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे? सो सी द डेटा फॉर 2001, it is 40. You would say sir sale in 2001 is 40, but in 1000 that means 40,000 बोलोगे, right? 40,000 sale. And in 2002 if you see, you would see sir 2002 is coming somewhere here, right? So it is 30,000, right? So how much it has dropped? So you would say sir the drop will be what? You will take the difference. Okay, you have earned 40,000 in the first year and now you're earning only 30,000. Malab you have lost 10,000. Okay, so this is the drop. Okay, so this is what they can ask in percentage also, drop percentage. So percentage के लिए क्या करेंगे? Drop percentage if you want to find. So this 10,000 will be divided by what? So always the previous year because you're comparing to what? 2002. तो 2002 का आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है? From this to this. So answer is what? 3,000. ऐसे हो जाएगा. Into 100 कर देंगे, right? 0, 0, it cancels out and then that's how you get the answer is 33.33%, you can say. Okay, so I'm sure you're getting the idea. अच्छा ऐसा होता है या वैसा होता है and so on. Clear है? Okay, तो चलिए questions पे चलते हैं. Okay, this is what is paragraph. I have given you a brief. Okay, I hope it is clear. ठीक है? Now once we see those questions, then only you'll understand how and where we can solve the question. ठीक है? चलो. Okay, so before that, let me tell you about this. So goodbye June, welcome success. So today also your offer is going on. If you want, you can enroll to the batch of Assam Mahapack. Okay, one place for overall preparation. All exam preparation will be done at one place. So you can enroll to this batch. Okay, it is coming with double validity now. 2 साल का validity है आपका. So enroll it and the price is only 3599. But if you're using my code Y788, you'll get additional discount. कुछ और extra discount मिल जाएगा. ठीक है? So go enroll yourself and fulfill your dreams of getting an government job. ठीक है? चलो देखो. The first question is here. Okay. So the bar graph given below shows the sale of books. I told you generally sale and all these things will always be given. ठीक है? Okay. From 6 branches of a publishing company during 2 consecutive year 2000 and 2001. मतलब क्या है कि suppose this company number 1. ठीक है? This blue bar that you're seeing, this blue bar is for the year 2000. You would say sir 2000. Right, and the red bar is for 2001. See here it is mentioned at the bottom. If you see bottom right, you can see that out here it is mentioned. Again, you would say yes sir, it is mentioned. Okay, I hope you can see. Yes, you can see. Chalo, ठीक है? So blue line is for your 2000 year 2000, and red line is for your 2001 year. Okay sir, ठीक है? Right. So sale of book in thousands. That means this is not 80, it is 80,000. Now see, this examiner is very kind. He has also written the data for you. Okay, so you don't have to find and you don't have to waste your time. Okay, he has written the data for you. So you get such good examiners sometimes that they are very kind to you and they say that no, it's okay, I will make the things easier for students, right? So they'll mention the points for you so that you don't have to worry about the points. Okay, but if they wouldn't have given, then what you would have used? You would have used the lines. ऐसे line use करोगे, इसका bar का top यहाँ पे आ रहा है, then this line is coming in between, so this will be 105. Understood? ऐसे करके you'll have to see. Okay, and this will take some time of yours. So this examiner is very kind. So you should be thankful to this particular examiner who has given this question. Okay. So 6 branches are there: B1, B2, B3, and so on. B6 till B6 you have. ठीक है sir. And these are publishing companies. So book publishing company they are. So 2001 sale and 2002 sale is given. 2000 and 2001 sale is given. Sorry. Clear है? चलो. Graph is clear. ठीक है? This side is sales and this side is your branches. These are the branch name. ठीक है? B1, B2, B3, B4, B5 and B6. Okay, now see what kind of question you can expect in such diagrams. चलो देखो पहला question क्या है. So I have put the diagram here also so that it will be easier for you to answer. In exam also you will get it like this only. Don't worry. Okay, so first question is, what is the ratio of total sale of branch 2 for both year to the total sale of branch 4 for the both year? That means very easy. You have to find the ratio of B2 and B4. Okay, and here what are you going to find? You have to find the total sale
of B2 and B4. Clear है? So let's see B2. Where is it B2? You will say, sir, B2 is here. Okay. Total sale कितना? 75 plus 65 कर लो. है कि नहीं? 75 is on the year 2000 and 65 is in the year 2001. So therefore B2 का कितना आएगा? 75 plus 65 you are getting 140. है कि नहीं? 140 आएगा ना? हाँ 140 आ गया सर B2 का सेल. Right? Now similarly B4. What is B4? You will say, sir, B4 is this. इसका सेल देखो 85 था, 95 हो गया, इसको ऐड कर दो प्यार से. ठीक है. सो यू विल गेटिंग 180. है कि नहीं? 5 5 10 9 9 18 हो गया. Now you just cancel it to the simplest form because in ratio we always find the simplest form. Okay. Now see, in this thing you don't have to put 1000. Okay, because in ratio the 1000 will get cancelled automatically, right? So 1000 मत लिखो. Instead just write this and solve. 0 cancels out. 2 7s are 14 and then 2 9s are 18. So 7:9 is your answer for the first question. Easy. Okay. So in this particular question, compared to B2 and B4, they can ask what type of question. I will tell you that also. Okay. So this is the first thing. Okay. This is the ratio of total sale. Okay. Next, they can also ask you the total sale of both the company. Total sale. So in this case, you will do what? You will do, sir, 140. लेकिन ये क्या में है? 1000 में. तो 140,000 हो जाएगा. Right? Plus 180,000. Okay. So this is one question they might ask. The total sale of both the companies. मतलब B2 plus B4 बताओ. Total sale कितना किया दोनों ने? So here you can get the answer 32, 3,20,000. Right? 3,20,000 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. This is the next question. The question which they can ask. I'm putting that also together. Next, they can also ask the, a sale of B2 with respect to B4, or they can ask you sale of B4 with respect to B2, and also they can ask the percentage increase. ठीक है. So suppose if they say that how much is what is the sale of B2 with respect to B4? B2 with respect to B4 अगर क्वेश्चन पूछा, B2 with respect to B4, ठीक है, तो क्या करोगे? B2 को ऊपर लिखेंगे हमेशा. Yesterday I told you why do we write, right? So whoever you're comparing with, you write at the denominator, और जो है उसको ऊपर लिखेंगे. ठीक है. So B2 is 140 you will say, and B4 is 180 into 100. Okay, this is the percentage. So 100 करना पड़ेगा हमें. 0 cancels out. 2 7s are 14, 2 9s are 18. So 700 by 9 you're getting. 700 by 9. इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो कर लेता हूँ. 7 9s are 63 हो जाएगा. फिर से 70 आएगा. 77.77 ऐसा कुछ आएगा परसेंट. क्लियर? राउंड ऑफ यू कैन डू. राउंड ऑफ करोगे तो 78% आ जाएगा आपका आंसर. ओके. 78%. ठीक है. क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो. दे कैन आस्क इंक्रीज इन द सेल. इंक्रीज. ठीक है. इंक्रीज. सो B2 विथ रेस्पेक्ट टू B4. ठीक है. इंक्रीज बोला है. मोर, लेस, हाउ मच लेस, हाउ मच इंक्रीज, हाउ मच डिक्रीज. दिस टर्म्स वट एवर यू गेट, what you will do is you will always subtract them and then divide it by the previous number. That's it. सिंपल है. तो B2 माइनस B4 करूंगा अगर मैं. B2 माइनस B4 यहाँ लिख देता हूँ. B4 माइनस B2 एंड कंपेयरिंग विद रेस्पेक्ट टू B4. B4 के साथ कंपेयर कर रहे हो, इंटू 100 कर दोगे. राइट. तो कर लो. B4 कितना है? तुम बोलोगे सर 180. राइट. बट आई टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो, जनरली व्हेन यू हैव टू फाइंड परसेंटेज यू डोंट नीड द एग्जैक्ट वैल्यूज. एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, रेशियो से काम हो जाएगा. ठीक है. तो 7 माइनस 9 कर लो, यू विल गेट 2. है कि नहीं? 9 माइनस 7 2 होता है. राइट. डिवाइडेड बाई B4 कितना है? तुम बोलोगे सर 9 इंटू 100. क्लियर है? So 200 by 9 you are getting. So here you are getting round of value above 20, maybe 23% बोल सकते हैं. Clear? So these are few more questions which they can ask with relation to B2 and B4. Okay. So I've explained each and everything to you. I hope it is clear. ठीक है. ठीक है ना? चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. यही क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वन थिंग यू नोटेड दैट in IBPS exams, okay, data interpretation is very easy. You will get minimum 10 questions. मतलब 2 main questions you will get like this. ये जैसा एक main question है. This whole thing is a main question, and based on this you will get 5 questions inside. तो minimum 10 questions you can expect in this paper. ठीक है. 35 questions होते हैं मैथ्स में. ठीक है. तो 35 में 10 क्वेश्चन आपका DI लेके चला जाएगा. DI, okay. Remaining 25 question will be of miscellaneous type. Miscellaneous जिस पे आपके arithmetic आएंगे, quadratic equation and all those things. Clear है? So 10 marks you can guaranteely get it if you are doing the sums properly and correctly. ठीक है. So accuracy is the main key and also speed. Calculation should be quick and these are the main key points that you should keep in mind while giving the exam. ठीक है. चलो अब ये देख लो.
सेम ग्राफ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर, B6 फॉर बोथ द ईयर, ठीक है, B6 फॉर बोथ द ईयर मतलब ये दोनों साथ में ऐड कर देंगे। B6 फॉर बोथ द ईयर टोटल कितना आएगा, तुम बोलोगे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल, ठीक है। तो 80 + 70 इज 150 यू वुड से, है कि नहीं, 80 + 70 इज 150, राइट, नो डाउट इन दैट। ओके, इज व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर। अब B3 की बात कर रहे हैं, B3 ये है, B3 कितना है, तुम बोलोगे सर 110 + 95 दैट इज 205, है कि नहीं, 205 होगा ना, 10, हाँ 205 होगा एब्सोल्युटली, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज B3, क्लियर है। सो आई एम डूइंग इट लाइक दिस सो दैट लेटर ऑन व्हेन यू गेट द नोट्स यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, क्लियर है। वी हैव एडेड देम एंड वी हैव रिटन, नाउ दे सी, नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। B6 फॉर बोथ द ईयर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ किसके साथ, B3, सो ऑलवेज यू विल राइट B6 एट द टॉप एंड B3 एट द बॉटम, ठीक है, इंटू 100। आई एम एक्सप्लेन अगेन, ठीक है, इस पर हमें परसेंटेज निकालना है इन दोनों के बीच का। सो दे आर वी आर कंपेयरिंग B6 विथ B3, ठीक है, B6 कितना परसेंट है B3 का, सो दैट्स व्हाई B6 एट टॉप एंड B3 एट द बॉटम, ठीक है। B6 इज हाउ मच परसेंट ऑफ B3, दैट्स व्हाई B6 एट टॉप एंड B3 एट द बॉटम, क्लियर है। अगर इंक्रीज बोलता तो वी वुड हैव सब्ट्रैक्टेड B6 माइनस B3 डिवाइडेड बाय B3, बट हियर दे हैव आस्क्ड के कितना परसेंट है, सो डायरेक्टली यू विल डू दैट। सो नाउ यू फाइंड B6 is how much, you would say sir B6 is 150, we have found out, and B3 is how much, you would say sir 205 into 100 you will do. Okay, now cancel the unnecessary terms first. So let me cancel this, 541s are 520s are, अच्छा 41 और इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, 41 and 150 आई कैनॉट कैंसिल, 3 4 160 हो जाएगा, तो ठीक है सर कोई बात नहीं, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लो भाई। सो सी 0 0 है तो 100 लिख दो साइड में, ठीक है, 100 का कोई खेल नहीं है यहाँ पे, इंटू 15 2 इज 30, राइट, डिवाइडेड बाई 41, तो 41 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो एक काम करो एक जीरो ले लो यहाँ से, एक जीरो, ओके, एंड देन विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10, दैट्स इट। अब 41 डिवाइड बाई 300 करोगे तो 300 के पास जाओ, ठीक है, 4 7 28 हो जाएगा एंड 4 8 32, 8 विल बी मोर, राइट, सो 70 समथिंग आएगा आपका आंसर, तो 70 ऑप्शन है, ठीक है, करना ही पड़ेगा तब तो। 7 यू गेटिंग 28, 28 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, तो डेसिमल लोगे तो 200 आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 5%, ठीक है, 5 इंटू 100 बोल सकते हैं। सो 75% विल बी द राउंड ऑफ वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इंटू 10, सॉरी नॉट 100, 75%, तो 75.55 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, सी द कैलकुलेशन ऑल्सो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट क्विकली, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ डूइंग 41 नो आई कैन अज्यूम इट टू बी 40, उससे भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको 40 मान लेते हैं, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना बचा 20, 0 0 कैंसिल 2, सो ऑलमोस्ट 75% आ रहा है कि नहीं, देखो डायरेक्टली आंसर आ रहा है ना, तो 75% वाला ऑप्शन यही है, ठीक है। और अगर थोड़ा छोटा वैल्यू होगा तो 75 से थोड़ा नीचे होगा, 74.99 समथिंग, तो वैसे टिक कर लेंगे, ठीक है। सो एग्जाम में यू मस्ट यूज द ट्रिक ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑल्सो, कि अप्रोक्सीमेट कर लो ना इसको, ठीक है, 41 से डिवाइड करना जरूरी नहीं है ना, 41 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डायरेक्टली डिवाइड बाय 40, बट कंडीशंस अप्लाइड दैट यू मस्ट सी द ऑप्शंस। अगर यहाँ पे ऐसा होता 75.12, 75.23, 75.55 एंड सपोज वन मोर 75 पॉइंट सपोज 38 ऐसा होता, देखो आप सब में 75 तो है ही, राइट, तो 75 निकालोगे तो होगा नहीं, दैट टाइम यू विल डू द एक्यूरेट कैलकुलेशन, अंडरस्टूड। बट यहाँ पे तो सारे ऑप्शंस वेरी दे हैव सम रेंज, ओके, एग्जामिनर इज वेरी काइंड टू अस, so we can use the trick of approximation and directly solve. So always while solving the question, no, your one eye should be in the answer and one eye should be in the option, clear है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो क्या जा रहा है, सो हियर आई कैन सी दैट द रेंज आर वेरी डिफरेंट, सो यू कैन राउंड इट ऑफ डायरेक्टली, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम 205 को 200 मान के सॉल्व कर लो डायरेक्टली, ठीक है, बिकॉज सी द ऑप्शन हैज अ वेरिएशन, अंडरस्टूड। चलो क्लियर है, आगे बढ़े, देखो आप ये देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन का है, ओके ओके, लेट्स सी दिस अगेन, ब्रांचेस आर गिवन एंड सेल्स आर गिवन, ठीक है सर, चलो देखते हैं क्या बोला है। व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B2 B3 इन 2001 is the average sale of branch B1 B3 B6 in 2000। देखो अब this is a type of question which you can expect in your exam, ठीक है, B1 B2 B3 2001, so B1 B2 B3 ये है, 2001 कौन सा, ये लाल वाला है, रेड वन, राइट, सो सी यू हैव टू सी द डेटास वेरी केयरफुली, ओके, अदरवाइज आई कैन गारंटी दैट यू विल मेक मिस्टेक, ठीक है, ये 2001 है, इन सारे डेटास का एवरेज निकालना है, ठीक है। यस्टरडे आई टॉट यू अ मेथड दैट एजम्पशन नंबर से कर लो या फिर आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, सो आई एम राइटिंग इट हियर। सो एवरेज
01 लिखता हूँ, 2001 का एवरेज निकाल रहे हैं हम, है कि नहीं। सो कर लो, 105 प्लस 65 कितना होगा, 170, 170 प्लस 110, 280। देखो ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, डिवाइडेड बाय 3, है कि नहीं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। 170, 280 हो गया, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, रहने दो, ठीक है, क्योंकि 3 बाद में ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा। ओके, नाउ सम कैंडिडेज विल कैंसिल दिस, ठीक है, 90 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, टाइम वेस्ट, नो, लीव इट एज इट इज, ठीक है, बाद में अगर जरूरत पड़ा तब करेंगे, वरना रहने दो, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स निकालिए हमने 2001, डन। ओके, और व्हाट परसेंट ऑफ बोला है, तो मतलब दिस एवरेज वी विल डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट एवरेज, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, B1, B3, B6, ओके, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर, लेट मी यूज अ ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन। ओके, B1, B6, B3 एंड B6 कौन से साल में, 2000, ठीक है। सो हियर आई विल टेक दिस 80, हियर आई विल टेक 95 एंड हियर आई विल टेक 70, ठीक है, बिकॉज 2000 ईयर्स का डेटा निकालना है। सो एवरेज अब 00 लिख देता हूँ 2000 को, ठीक है, विल बी हाउ मच, सो ऐड कर लो। सो हाउ टू ऐड, सो सी यू ऑलवेज यूज द मेथड ऑफ ग्रुपिंग, तो 70 80 को ऐड करो पहले, इजी होगा। 70 80 इज 150, ठीक है, 150 आ गया, 150 पे 95 जोड़ दो, कितना आएगा, 245, 245 डिवाइडेड बाई 3, है कि नहीं, आ गया 245 डिवाइडेड बाई 3, राइट, नो डाउट इन दैट, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द एवरेज ऑफ 2000 ईयर्स एंड एवरेज ऑफ 2001, क्लियर है। सो रेड 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 सारे एवरेज ऑफ 01 है, इसलिए आई एम यूजिंग 2 कलर्स एंड 2000 आर द ग्रीन 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 वंस, हो गया। नाउ व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, सी दैट व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ दिस इज एवरेज सेल ऑफ दैट, मतलब कंपेयर कर रहे हैं एवरेज सेल ऑफ 01, एवरेज सेल ऑफ 01, सो वी हैव टू फाइंड दिस, ओके। सो परसेंटेज निकालना है, मतलब एवरेज ऑफ 01 एज कम्पेयर टू एवरेज ऑफ 00 बोल सकते हैं 2000 का, ठीक है, इसको 2000 ही लिख लो, वरना बाद में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। सो जस्ट राइट 2000, नो प्रॉब्लम, बट इन एग्जाम यू डोंट हैव टू डू दिस, ओके, आई एम डूइंग इट लाइक दिस बिकॉज आई हैव टू शो यू कि हो क्या रहा है, ठीक है, बट इन एग्जाम यू कैन जस्ट स्किप इट एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द आंसर्स, ठीक है, बिकॉज इन एग्जाम इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस देन ऑब्वियसली यू आर आउट ऑफ द रेस ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, फ्यू क्वेश्चंस विच रिक्वायर्स, सो राइट इट डाउन, बट यू मस्ट इंक्रीज द स्पीड, कह रहे इंटू 100 कर देंगे तब जाके आएगा परसेंटेज, हाँ सर आएगा, बिल्कुल निकाल लो परसेंटेज। एवरेज ऑफ 2001 कितना आया, 280/3, सो आई एम राइटिंग इट हियर, एक काम करो, आई एम थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर। सो 280 डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया एवरेज ऑफ 1, देन 2000 का कितना है, 245/3 इंटू 100, ओके सर। 3 विल गेट कैंसिल, राइट, 3 विल गेट कैंसिल, या फिर देख लो और एक स्टेप लिख देता हूँ मैं, 280, ओके, नाउ सी 280/3 है, सो दिस 3 विल कम एट द बॉटम, राइट, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथ्स, दिस 3 कहा जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जो नीचे वाला 3 है वो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, ऐसे होता है कि नहीं। सो दिस 3 हैज़ कम हियर, राइट, और ऊपर में और एक 3 चला गया, हो गया, ओके सर, हो गया। दिस वाई आई सेड दैट डू नॉट मल्टीप्लाई और डू नॉट डिवाइड, ठीक है, बिकॉज आई नो दैट 3 विल गेट कैंसिल ऑटोमेटिकली, एंड हियर यू हैव लेफ्ट आउट विद 245 इंटू 100, 3 कैंसिल हो गया, देखो अच्छे से कैंसिल हो गया ना। नाउ कैंसिल दिस टर्म्स, सो लेट मी यूज रेड टू कैंसिल, 5 से करता हूँ, 5 4 ज़ा 20, 49 ज़ा 5, 49 ज़ा 245 हो जाएगा, एंड 520 ज़ा 100 हो जाएगा, ठीक है, ओके। 49 इज 7, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 40 ज़ा इज 28, ठीक है, 280। अब 40 और 20 तो 7 से कैंसिल होगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो आप, ठीक है, परसेंटेज विल बी व्हाट, सो 4 2 ज़ा 8, 800 डिवाइड बाई 7, सो कितने के पास है ये, तो तुम बोलोगे सर 7 11 ज़ा 77, 11 ज़ा 77 हो जाएगा, 30 आएगा, सो ओके, आंसर मैच नहीं हो रहा, कहाँ गड़बड़ हो गया, सो देर माइट बी सम मिस्टेक दैट वी हैव मेड, लेट मी जस्ट चेक वंस, क्रॉस चेक वंस, ठीक है, एवरेज ऑफ सेल, ठीक है सर, ये तो ठीक है, इज एवरेज सेल ऑफ B1 B2 इन 2000, ठीक है, ओके, 280 इंटू 3 245, ठीक है, इसको कैंसिलेशन में गड़बड़ होगा ना, 5 4 ज़ा 20, 49 ज़ा, ठीक है, 520 ज़ा, ओके, 7 7 ज़ा 7 4 ज़ा, ठीक है, 800, तो कितना आ रहा है आंसर, आंसर तो आ नहीं रहा, कहीं गड़बड़ हो गई जी हमसे, ओके, B1 B2 B3, ओके, फॉर 2001, ओके, 170 280 हो गया, ठीक है, 280 आ गया, 280/3 एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 3, राइट, ओके,
इसके बाद क्या बोला है, B1 B3 B6, ओके 2000 में, so in 2000 it is 70 95 and 80, okay 150 150 90 245, सही तो है सही है ना. So where is the mistake? 549 जा 520 जा, so कहाँ गड़बड़ हो गया जी. ओके ठीक है चलो. आई होप यू गॉट द आइडिया. आई डोंट नो वेयर इज द मिस्टेक. यू कैन रेक्टिफाई मी, ओके, इफ यू सी द मिस्टेक एनीवेयर. ठीक है, ओके, यू कैन रेक्टिफाई मी इफ यू सी द मिस्टेक. मुझे तो दिख नहीं रहा वैसे. व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांच इज द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच. अच्छा, आई थिंक द ऑप्शंस आर रॉन्ग मे बी. ठीक है, तो इस पे आंसर आ रहा है मेरा 11 जा 77 30 आएगा 4.2 समथिंग परसेंट. ठीक है, एंड ऑब्वियसली द परसेंटेज शुड बी मोर. देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया ना, दिस आर रॉन्ग, ओके, बिकॉज सी 280 इज मोर देन 245, सो ऑब्वियसली इट विल बी मोर. ठीक है, 100% से ज़्यादा ही होगा, 100% से कम नहीं हो सकता. इट वॉज 245 बाई 280, तब आपका परसेंटेज ऐसा कम आता 100 से कम. बट 280 इज मोर देन 245, सो ऑब्वियसली द परसेंटेज शुड बी मोर. ठीक है, बट स्टिल आई विल रेक्टिफाई, डोंट वरी, आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन. आई विल जस्ट चेक फ्रॉम वेयर आई, सो वो किताब से मैंने लिया था. आई विल चेक द ऑप्शन, ओके, मे बी ऑप्शन डालने में मैंने गलती कर दिया. चलो देखते हैं, आगे बढ़े. ओके, सो APSC फाउंडेशन बैच with 80+ test series and handwritten notes. So go enroll in this batch if you have a dream of becoming an ACS officer, which has a lot of respect and lot of power. Only 399 rupees में चल रहा है, but discount अगर और चाहिए आपको, so you can use my code Y788. Okay, Y788. You can use this code and you can enroll to this particular batch. Okay, chalo. Okay, new question. See the data. Okay, so the bar graph given below shows the foreign exchange reserve of a country in million US dollars from 1991 to 1992 and 1998 to 1999 and so on. ठीक है, ऐसा चल रहा है. एक एक साल का डेटा दिया हुआ है. ठीक है, 1991 to 1992 is 1 year, like that they have given. Okay sir, ठीक है. Foreign exchange reserves of a country in million US dollars पे दिया हुआ है. Okay. So an examiner is very kind, he has also given you the data. Exact data दिया हुआ है आपको, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन होगा तब तो. ठीक है, let's start solving the questions. Okay, so first question, try to solve this. Okay, try to solve this. Till then I'll just verify that question. Okay, don't worry, just a minute. You solve this, I'm coming. Okay, solve this, I'm coming within 1 minute. चलो इसको solve करो जल्दी. Okay, I'm back. Okay, so let's see what's happening in this particular question. ठीक है, चलो देखते हैं साथ में. Okay, see. Okay, ठीक है, ये सब दिया हुआ है. Okay, whatever data is given. ठीक है, the ratio of number of years in which the foreign exchange reserve are above the average reserves to those in which the reserves are below the average reserve is. तो देखो बहुत भयानक सा क्वेश्चन आ गया. ठीक है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल दिस डेटा. ठीक है, और एवरेज निकालने के बाद जितने आपके उसके ऊपर हैं उसको ऐड करोगे और जितने उसके नीचे हैं उसको ऐड करोगे और फिर डेटा निकालोगे. ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन है. यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन योर एग्जाम. ठीक है, अभी लेवल बढ़ रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट. सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबव द एवरेज रिजर्व टू दोस इन विच द रिजर्व आर लेस देन. चलो पहले एवरेज निकालो, सबको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, आप देखो ये ऐड करने बैठ गए तो पूरा दिन चला जाएगा. ठीक है, यू विल लूज दी एंटायर डे. सो इस पर क्या करेंगे सर, इस पर हम एजम्पशन नंबर वाला मेथड यूज़ करेंगे. ओके, लेट मी अज्यूम अ नंबर. क्या नंबर ले लूँ, तो 3000 3000 3000 बहुत सारा दिख रहा है. काम करो 3000 ले लेता हूँ नंबर. ओके, लेट मी अज्यूम दिस इज द नंबर. ठीक है, अच्छा 2640 3000 से कितना कम है, तो बोलिए सर इट इज़ माइनस कितना, तो इस पर तुम ऐड कर दो. ऐड अ नंबर सो दैट यू गेट 3000. देखो 0 पे 0 ऐड करूँगा 0 आएगा, 4 पे 6 ऐड करने से 10 बनेगा तो 7 बन गया, 7 पे 3 ऐड करूँगा तो बन जाएगा. देखो दिस इज द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग. ठीक है,
नाउ देर आर टू कैंडिडेट्स हु विल डू दिस, ओके। एक तो होगा ये करने वाला, 0 इस पे कैरी वेरी लेगा, राइट, उसके बाद 6 3 ये आंसर निकालेगा। और एक होगा स्मार्ट कैंडिडेट जो तुम हो, विच व्हाट यू विल डू इज यू जस्ट अज्यूम कि 2640 पे कितना ऐड करूँ कि 3000 आएगा, ठीक है, और पीछे से ऐड कर करके जाओ, खुद ब खुद आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज व्हाट 3000 से ये 720 ज़्यादा है तो प्लस 720 लिख दूंगा, हो गया। ओके, 3000 से ये कितना कम है तो माइनस दे देंगे, तो यहाँ पे 0 दूंगा, इस पे 0 लाना है तो 8 + 2 करूँगा 10 आएगा, 6 हो गया, वो 6 पे 4 करूँगा तो हो जाएगा 480। देखो कितने आसानी से आ रहा है। इस पे दिस इज मोर 360, 360 मोर देन 3000 बोल सकते हैं। इस पे क्या रही है 120 ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है। आउट हियर इट इज़ मोर 1320 ज़्यादा ही है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। इसको देख लो, तो ये तो बहुत सारा है सर, ये 2040 इज ग्रेटर, 2040 ग्रेटर देन 3000, ठीक है। तो और अच्छा रहता ना अगर हम इस पे नंबर ले लेते लाइक सपोज 3500, तब और आसानी से होता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये ले लिया तो इसी से सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। एंड दिस ओनली 120 मोर, हो गया। तो सबसे पहले वो सब नंबर को काट दो जो यहाँ पे सेम हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो 360 माइनस 360 प्लस 360 फिर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, 0 बन गया, हो गया, ओके। और कुछ है? और तो नहीं है। अच्छा देखो ये दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 240, ठीक है, ओके। एक काम करो, ऐसे रहने दो। अब आगे से कर लो, 720 माइनस 480, 480 पे कितना ऐड करूँगा तो 720 आएगा। तो बोलिए सर 240 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस पे आएगा 240, राइट। और 720 बड़ा है तो प्लस 240 होगा। ये पार्ट क्लियर है? 042, गुड, अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, बट इट इज गुड लेवल क्वेश्चन, ठीक है। सो यू शुड डू इट। 240 हो गया, देखो ये पूरा पार्ट खत्म, 240 आ गया ये पार्ट में। अच्छा 240 प्लस 120 ज्वाइन कर लो, कितना आएगा? 360, 360 प्लस 120 ज्वाइन कर लो, कितना आएगा? 480, 480 आ गया। ये सब भी काट दो, देखो कितने आसानी से हो रहा है, डन। 480 हो गया, राइट। अच्छा अब बस इसको इसको हमें ऐड करना है। 2040 प्लस 1320 करोगे तो आएगा तुम्हारा कितना? 3360, 3360, ये पार्ट भी खत्म। नेक्स्ट 480 ऐड कर दो इस पे, 04183, 380 डिवाइडेड बाई कितने ईयर्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 क्या? इसको डिवाइड कर लो, 8 कितना सा 8 4 ज़ा 32 होगा, 480 आ रहा है, 480, ठीक है। प्लस 480 आ रहा है तो इस पर प्लस 480 कर दो, ये हो गया आपका एवरेज। सो द एवरेज इज व्हाट यू वुड से सर 3480 इज माई एवरेज, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको ना ऐसे नहीं लिखता हूँ, बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। दिस इज द अज्यूम्ड नंबर, ठीक है। मैंने ये नंबर अज्यूम किया। अब एवरेज कितना आ रहा है? तुम बोलोगे सर 3000 था, इस पर प्लस कर दूंगा 480, ये वाला 480 को इस पर प्लस कर देना है, बस दैट्स इट, हो गया। कर दो, कितना आएगा? तुम बोलोगे सर एवरेज इज कमिंग 3480, बस एवरेज आ गया। अब तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व एनीथिंग। So I told you yesterday also that average and percentage is very important for your data interpretation. So it is very, you should be very precise with the calculation, ठीक है। और एवरेज कैसे निकालते हैं मैंने दिखा दिया, assumed number लेकर, ठीक है। दिस कैलकुलेशन और ईजी होता है, दिस कैलकुलेशन वुड हैव बीन ईजियर इफ यू वुड हैव टेकन अ नंबर सच एज 3500 या 3600 ऐसा कुछ लेते ना, सो इट वुड हैव बीन ईजियर। वो भी करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। बट अभी के लिए 3480 इज द एवरेज, ठीक है। एवरेज है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज 3480, ओके सर, ओके। नाउ लेट्स सी, अब ये सारे चीज़ को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। आई एम रिमूविंग ऑल ऑफ दिस, ओके, बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। बस हो गया। नाउ वी जस्ट हैव टू सी द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 3480 एंड विच आर लोअर देन 3480। 3480 से बड़ा कौन है सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या बोला है, आर अबव द एवरेज रिजर्व, एवरेज रिजर्व इज दिस एवरेज रिजर्व, राइट। सो वी हैव टू सी अबव, अबव वाले क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर 3480 अबव इज दिस वन 3720, आफ्टर दैट 3360 तो नहीं होगा बिकॉज इज लेस देन, अच्छा ये है, एंड दिस ओनली 3 आ जाए सर, ऐड कर लो सबको। सो 50404320 कितना आएगा? तुम बोलोगे सर यहाँ पे होगा 9360, है कि नहीं? 9360 होगा, ओके। 04263 ऐसे स्पीड में करना है। हियर यू जस्ट हैव टू ऐड 3720, दैट्स इट। 08, ओके, 08013 13080, 13080 यू आर गेटिंग, ठीक है। और बिलो द एवरेज द रिमेनिंग, ये सारे को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी लेंदी क्वेश्चन, बट इट इज़ अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन, ओके। अच्छा लेवल का है, दिमाग घुमा देने वाला लेवल, ठीक है। सो हम राइटिंग हियर अबव पे कौन कौन थे, तो 3720,
देन 4320 एंड 5040, तो ये सबका टोटल ये आया, चले। और एवरेज तो नहीं बोला है ना, एवरेज बोलते हैं डिवाइड बाई 3 भी करते हैं, बट जस्ट अबव एंड बिलो बोला है, तो दैट्स इट। बिलो में क्या है, तो ये हो गया, बाकी सबको ऐड करना है, ठीक है। तो 2640 प्लस 2520 कर लो, कितना आएगा, तुम बोलोगे सर 0615 5160, ओके सर। इन दोनों को ऐड कर दो तो तुम बोलोगे सर 0846, ओके। लास्ट दिस यू हैव टू ऐड, सो 3120, क्लियर है। 0 10 16, राइट, 5 6 7 5 6 11 3 14 1 4 7 6 0, ओके। नाउ सी द ऑप्शंस विच आर कमिंग, कितना छोटा छोटा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, 14760, okay। So now the what we have to find is we have to find this ratio निकालना है, so 13080 divided by 14760 ये निकालना है, क्लियर है। तो 0 कैंसिल हो गया, अब इसको कैंसिल करो, देखो अभी कैंसिल करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो यूज द हेल्प ऑफ ऑप्शन, ठीक है। नाउ सी द मल्टीपल, ठीक है। अब ऊपर में 2 आ रहा है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तुम बोलोगे यस सर होगा। और नीचे में 6 आ रहा है, तो क्या ये 6 से डिवाइड होगा, तो तुम बोलोगे सर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 डिविजिबिलिटी रूल इज व्हाट, सो 6 डिविजिबिलिटी रूल इज दैट द लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, ओके। लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो लास्ट डिजिट तो डिविजिबल बाय 2 हो रहा है सर, और लास्ट 3 का भी चेक कर लेता हूँ। 3 का divisibility rule, what is the 3 divisibility rule? So you have to add the digits and then you have to answer. So 4 plus 1 5, 5 plus 7 12, 12 plus 6 18, yes 18 is being divisible, so this will be the answer, 2:6 directly, okay। You don't have to solve, देखो क्या है, फिर से समझा रहा हूँ, I'm explaining again, ठीक है। What we have done here is that we have got this 1308 divided by 1476, right। now use the help of option to see, so obviously if the ratio has come 2 and 6, then obviously that means that this particular number will be divisible by 2 and divisible by 6, है कि नहीं, right। so इसको 2 से डिवाइड करो, देखो 2 का divisibility rule is the last digit should be divisible by 2, yes both numbers are divisible by 2। and 6 का divisibility rule क्या होता है, 6 divisibility rule is that the last digit, first thing is the last digit must be divisible by 2 and the sum of digit must be divisible by 3। ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो 6 से डिविजिबल होगा वो, या फिर साइड पे डिवाइड करके देख लो, 6 से डिवाइड होगा, सो दिस विल बी द आंसर, ओके। अब जैसे यहाँ पे 3, ठीक है, ओके। सो आउट हियर लेट्स सी दिस, सो यहाँ पे इफ यू सी, सो हियर आल्सो 3 एंड 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो दैट मीन्स दैट ऑप्शन सब ऐसे टाइप के दिए हुए हैं विच आर डिविजिबल, ठीक है, जिसपे सब डिविजिबल हो रहा है। तो आप क्या करोगे सर, ये 4/4 तो होगा ही नहीं, 4/4 मीन्स 1, so now we have to cancel out, we don't have any option, okay। अगर यहाँ पे there would have been different options where it is not following the divisibility, तब क्या करोगे, तो तब तुम्हें वो करना पड़ेगा क्या, the thing कि तुम डायरेक्ट टिक करके निकल सकते हो, how, just see the option if it is divisible by 2 and divisible by 6 or not, ठीक है। but out here I can see that all of the numbers which are given in the option can divide this particular number, तो क्या करना है, अब लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा, you have to calculate, ठीक है। तो काट लो भाई, उपाय नहीं है, 4 से कर लो, 4 3 12, 10 आएगा, 4 2 8 7, 372 आ रहा है, 327 आ रहा है, इसको काटो, 4 3 12 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, 3 9 एंड 2 हो गया, अच्छा। सो 3 से कैंसिल करके देखता हूँ, 3 3 1 0 9 ज़ा 3 1, नहीं ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, इट इज़ नॉट गेटिंग कैंसिल बाई 3, ओके सर। अब क्या करें, क्या से करूँ, 3 9 12 14, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, दैट्स सम मिस्टेक। सो कहाँ चला है, कहाँ गड़बड़ हो गया जी, रुको देखता हूँ एक बार, 4 3 12 10 आएगा, 2 8 27, हाँ सही है, ओके। सो नाउ इफ़ आई यूज़ द ऑप्शंस, 3 से ऊपर वाला हो रहा है और 4 से नीचे वाला हो रहा है, ठीक है, 3 से ऊपर वाला हो रहा है और 5 से नीचे वाला नहीं हो रहा, सो आई गॉट द आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। अब देखो इस पे हेल्प लेंगे हम ऑप्शन की, ठीक है। इसको डिवाइड बाई 3 करो, हो रहा है ना, तो बोलोगे यस सर हो रहा है, हो रहा है, यस सर। इसको डिवाइड बाई 4 करो, हो रहा है, यस सर हो रहा है, दैट मीन्स दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। 3:4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यू डोंट हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो अभी यहाँ पे दिमाग घूम रहा है कि कौन सा नंबर से इसको डिवाइड करूँ,
है कि नहीं. ऑब्वियसली हियर दे हैव डिवाइडेड बाय अ बिगर नंबर सच एज योर क्या हो सकता है 27 29 ऐसा कुछ नंबर होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. So now once you have converted to simplest form as much as you can, you just see the option. Okay. Now see this cannot be divided by 2 है कि नहीं. 2 से डिवाइड होगा नहीं तो इसलिए ये नहीं होगा. काटो इसको. ठीक है. नेक्स्ट 3 से डिवाइड हो रहा है. यस सर हो रहा है. एंड बॉटम वन इज डिवाइडिंग बाय 4. यस सर इट इज डिवाइडिंग. दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर. क्लियर है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. सो इफ यू वांट द एग्जैक्ट वैल्यू आई कैन टेल यू. जैसे 3 9 क्या 3 9 27 आएगा. 2 कैरी वी नीड 32. सो यहाँ पे 10 आना चाहिए. ठीक है. 3 10 30 तो 330. तो 109 से दोनों को कैंसिल कर सकते हो. देखो 109 3 इज 1308. 109 4 इज 1476. अंडरस्टूड. सो व्हाट वी आर कैंसिलिंग विद 109. देखो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू यूज द ऑप्शन. क्लियर. ऑप्शन यूज करके सॉल्व करना है. देखो कितना लेंथी क्वेश्चन था राइट. बट वंस वी यूज द ऑप्शन इट इज वेरी इजी. ओके. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कट simplify it to the simplest form and then you get the answer by using the option. ठीक है. 109 से हो रहा है. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. चलो आगे बढ़े. लेट्स मूव अहेड. चलो लेट्स सॉल्व दिस ऑल्सो नाउ. इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो DI इज अ टाइम टेकिंग टॉपिक. ओके. नो डाउट इन दैट. बट यू शुड अंडरस्टैंड द स्टेप विच इज फॉलोइंग. ठीक है. स्टेप्स क्या हो रहा है वो ज़्यादा नेसेसरी है जानने में. ठीक है. तो चलो इसको करता हूँ. Let's solve this. Okay, so what is given here? So what was the percent increase in the foreign exchange reserves in 1997 over this? अच्छा, percentage increase निकालना है. 1997 to 1998 कौन सा है? तुम बोलोगे सर this one. Right? क्या है? 5040. ठीक है. Increase in percent बोला तो we have to subtract it. 1993 से 1994. 1993 से 1994 ये है. So this is 2520. Right? इसको सब्ट्रैक्ट कर लो. कितना आएगा? 02520 डिवाइडेड बाय यू आर कंपेयरिंग विद दिस ओवर दिस. इसका क्या है? 2520 इंटू 100. राइट. दिस इज कैंसिल. 100% इज द आंसर. ऑप्शन नंबर ए. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. इजी क्वेश्चन था. राइट. ओके. दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके. अच्छा क्वेश्चन था ये. यू कैन स्टार मार्क दिस. यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ ऑल्सो इन योर होम. ठीक है. माइट हैव हैपेंड दैट कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया बिकॉज आई एम गोइंग अ बिट फास्टर इन हियर. सो आप घर में ट्राई कीजिए. मेथड समझ में आ गया ना. सो यू हैव टू यूज दैट मेथड. ओके. जस्ट यू हैव टू फाइंड द एवरेज एंड अबव एवरेज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. 2 बिलो एवरेज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. दैट्स इट. यू हैव टू फाइंड द रेशियो. दैट्स इट. ठीक है. आगे बढ़े. चलो लेट्स सॉल्व दिस. द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1996 टू 1997 ये वाले साल की बात हो रही है. ओके. वर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ डायरेक्ट कंपैरिजन करना है. मतलब 4320 लिख दूंगा डिवाइडेड बाय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू. अच्छा. टोटल में से निकालना है. ठीक है. टोटल में से निकालना है क्या? व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू. तो टोटल में से निकालना पड़ेगा. ठीक है. अंडर रिव्यू में तो कोई एक साल होगा ना विच इज नॉट गिवन. तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इनकम्प्लीट एक्चुअली. ठीक है. अंडर रिव्यू बोला है ना. तो अंडर रिव्यू में तो क्या होगा? दे हैव टू गिव मेंशन ईयर विच वी कैन टेक फॉर कंसिडरेशन. राइट. ठीक है. व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू. सो अंडर रिव्यू के लिए तो कोई ईयर देना पड़ेगा ना. अंडर रिव्यू ऑफ दिस ईयर. अंडर रिव्यू इन सो एंड सो ईयर. उसके बाद ही निकालेंगे. ठीक है. सो दिस इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन. आई कम टू दिस ऑल्सो. ओके. डोंट वरी. तो आई डोंट नो वाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए था. ठीक है. जनरली आई थिंक माई कंटेंट क्रिएटर हैज मेड सम मिस्टेक्स. ओके. कोई बात नहीं. वी विल वेरीफाई. आई हैव द बुक हियर. आई विल वेरीफाई एंड आई विल सॉल्व इट. ठीक है. चलो. APSC Foundation batch. If you want to enroll to this batch, you can enroll to this batch. Okay, it's 5,000 rupees now, 4,999. But you can use my code Y788 to get additional discount. ठीक है. Y788 use करेंगे additional discount के लिए. Okay, so join in. Okay, and generally when I come to the class, no, I do not solve the question before coming to the class. Okay, I take the question directly and I solve it in front of you. ठीक है. ताकि everything should be transparent, right? The method I'm using to solve. Okay, अगर मैं फंस रहा हूँ तो आप भी फंस सकते हो.
ठीक है, दैट्स व्हाई आई मेक श्योर दैट आई टेक द क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड कम टू द क्लास टू सॉल्व इट। ठीक है, अब ये कीजिए ना, तब तक मैं ना वो सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस व्हाट बार ग्राफ गिवन फॉर 3 कंपनीज। ओके, 3 डिफरेंट कंपनीज एक्स वाई जेड। एक्स कौन सा कंपनी है, तो एक्स है ब्लू वाला, वाई इज माई रेड एंड जेड इज माई ग्रीन। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। ओके, सो दिस आर द कंपनीज विच आर गिवन। नाउ बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू फाइंड द डेटा। अच्छा, अब नाउ सी द एग्जामिनर इज नॉट दैट काइंड, ही हैज नॉट गिवन यू द एग्जैक्ट डेटा ऑन द टॉप। ठीक है, ऊपर में उसने एक डेटास नहीं दिया है, सो यू हैव टू फाइंड द डेटाज योरसेल्फ। क्लियर है? और क्या में दिया हुआ है, लैक में दिया हुआ है, लैक टन्स। ठीक है, चलो चलो ट्राई टू सॉल्व दिस टिल देन आई एम वेरीफाइंग द क्वेश्चन। ओके, डोंट वरी, लेट मी वेरीफाई द क्वेश्चंस। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी वेरीफाई इट। ओके, टेंशन मत लो यार, टेंशन नहीं लेने का, डू नॉट वरी, आई विल वेरीफाई द क्वेश्चन। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, कहाँ चला गया क्वेश्चन। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टिल देन आई एम वेरीफाइंग दिस क्वेश्चन। ओके, डोंट वरी यार, टेंशन मत लो। ओके, सो दिस इज ओके, ये वाला तो ये है। ठीक है सर, ओके दिस वन। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। ठीक है, टिल देन आई एम फाइंडिंग द क्वेश्चन ऑल्सो। हाँ, यही वाला क्वेश्चन था ना। सो लेट मी गो बैक टू दैट क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था जो, दिस इज करेक्ट। ओके, 3 to 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, सो 3480 है एवरेज, यस एग्जैक्टली। ओके, द ओके मिलियन ड्यूरिंग दिस ईयर्स। ठीक है, ओके सो आई गॉट इट। यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ क्या हुआ। ओके, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट व्हाट वी हैव डन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे टोटल एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबव एरिया, द रेशियो ऑफ, क्या बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ ईयर्स बोला है, जस्ट दे आर आस्किंग द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सो हियर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फाउंड द टोटल। ठीक है, सो दे हैव आस्क्ड द नंबर ऑफ ईयर्स। सो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ने का यही नतीजा होता है। सो दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, तो कोई बात नहीं, दिस इज वन क्वेश्चन। ओके, दिस इज टोटल वेयर वी आर फाइंडिंग द टोटल। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में मैं आई एम डूइंग अ बिट चेंज। ठीक है, इसी में अगर मैंने बोला आपको, सपोज दिस, ये था ना क्वेश्चन। हाँ, यही है। ओके, सो सेम थिंग आई एम पुटिंग इट हियर ऑल्सो। ओके, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ओके, हाउ मच एवरेज डिड वी गेट, यू से सर एवरेज वाज, एवरेज कितना आया, 3480। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वी हैव फाउंड इट टुगेदर, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, 3480 था। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर कितने ईयर्स है, तो इसके ऊपर है 3 साल। देखो, 1 2 एंड 3, सो अबव आर 3 years। okay, and below how much, so 1 2 3 4 5 5 years cancel, so 3 to 5 is the answer for this question. Okay, these are when they're asking just the number of years, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ हो गया इसलिए आंसर नहीं आया था। सो नंबर ऑफ ईयर्स बोला है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने टोटल निकाल लिया। ठीक है, सो वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, इवन आई थॉट कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, सो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो दे हैव आस्क्ड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल है, हिमान बसोड़ा से, how many years are there, how many years are there which has average greater than 3480 and less than 3480. So easy question hai. It was an easy question, just time taking was this average, and after average you can find the answers easily. ठीक है, so this is also okay, this is what this method you will use. ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, this will not be the answer, answer will be this for this question, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, इसका यही हो जाएगा। ठीक है, even this is correct, what we have done is correct. ठीक है, so this when will be this is a valid question, so they will say that find the total foreign exchange, ठीक है, ratio of total foreign exchange, ठीक है, foreign exchange of years in which the foreign exchange reserves are above। अगर ये क्वेश्चन होता total foreign exchange, ठीक है, that time we would have done this। ओके, इसको स्टार मार्क लगा लेना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बट दिस इज इजी, दे हैव आस्क्ड जस्ट द नंबर ऑफ ईयर्स,
which has above and which has below. Clear है? Now your concept is clear I guess. ठीक है? Now you don't have any doubt I guess. अब ये वाला तो सही है, दिस इज 100%. ये वाला देखता हूँ मैं एक बार, आई विल रिव्यू दिस क्वेश्चन. चलो इसके पहले ये स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट दिस, सॉल्व दिस. टिल देन आई एम सीइंग दैट क्वेश्चन आल्सो. ओके, डोंट वरी. ठीक है, वो क्वेश्चन भी मिल गया मुझे. सो आई थिंक वो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ था. यस, द क्वेश्चन वाज रॉन्ग इन दैट केस, सो आई विल करेक्ट दैट. चलो इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ. ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स इन पीरियड ऑफ 1998 टू 2000. 1998 से लेकर 2000 तक जाना है. कौन सा कंपनी? एक्स की बात हो रही है. एक्स इज व्हाट? ब्लू, ये वाली. सो लेट्स फाइंड. सी, दिस इज 20-30 के बीच में है, सो दिस इज 25, राइट. दिस वन इज, यू विल से सर दिस वन इज 50, दिस वन इज सर 40, है कि नहीं? इसको ऐड कर दो. 75, 40, 145, 135, नहीं 115, है कि नहीं? 50, 40, 90, 90, 115 होगा. 115 हो गया. व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज? मतलब डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा मुझे. ये हो गया एक्स का एवरेज. ओके, डिवाइड कर सकते हो इसको? नहीं, छोड़ दो, रहने दो. डिवाइड नहीं होगा. 3 3 9, 25 होगा, नहीं होगा. चलो 2 मतलब इसको डिवाइड कर दो. कंपनी ऑफ वाई, एवरेज वाई ऑफ द सेम कंपनी फॉर सेम पीरियड, मतलब सेम ईयर्स का ही देखना है. तो 1998 का देखोगे फर्स्ट. इन 1998 y इज योर 35, ओके सर, एंड हियर योर y इज 40, ओके सर, एंड हियर द y इज हाउ मच? 50. ठीक है, ऐड कर दो. 50, 40 एंड 35 कितना होगा? 75, 125 डिवाइडेड बाई 3. सो रेशियो निकालना यही है. 3 3 कैंसल्स आउट. सो 5 से कैंसिल कर लो. 5 23 जा, 525. So 23 to 25 is the answer, option number C. Easy question है. ठीक है, now coming back to that question. Okay, coming back, I told you no, I will not leave anything. Okay, okay. Okay, so what approximately what percent of the average foreign exchange reserve, average foreign exchange over the period of time? Average कितना था? Average कितना था? 3480. ठीक है, 3480 था. So here you will divide by 3480 and you will multiply it by 100. That's it. क्लियर है? 0 0 कैंसल्स आउट. इसको सॉल्व करेंगे. 4 से काट देता हूँ. 4 108 जा, 4 87 जा, राइट. इसको काट सकते हैं क्या? 7 4 जा करूँगा तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, सो नहीं काट सकते, इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा. सो 108 बाई 87, तो 1 जा 87 हो जाएगा. इफ यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 21. ठीक है, 21 आएगा तो 0 लगाना पड़ेगा. सो 3 जा विल बी मोर, सो 2 जा जाना पड़ेगा. सो 125% के आसपास आएगा आंसर. ठीक है, 125%. आई होप इट इज क्लियर. सो 124.14% कुछ बनेगा. सो इट इज ऑलमोस्ट 125 अप्रोक्सीमेट ही बोला है ना? हाँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है. सो दिस यू कैन अज्यूम टू बी, क्या आप मान सकते हो? 90 मान सकते हो. यू कैन अज्यूम दिस टू बी 90. ठीक है, सो 9 1 जा 2 जा, सो 120 समथिंग आ रहा है. 120 मतलब 125 यू कैन से. ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, आई होप यू डोंट हैव एनी अदर डाउट्स. ठीक है, तो चलो, क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी. सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. ठीक है, कर लोगे ना बार ग्राफ वाले क्वेश्चन. चलो लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन, देन विल एंड द सेशन फॉर टुडे. ठीक है, चलो. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई फ्रॉम 1996 टू 1999? या फ्रॉम हियर टू हियर यू हैव टू फाइंड. ओके, कंपनी वाई का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है 1996 और 1999 का. ठीक है, ओनली दिस 2 ईयर्स का ही निकालना है. चलो ट्राई करो. ठीक है, ट्राई दिस, देन आई एम डूइंग इट फॉर यू. ओके, कीजिए. Shall we solve? Chalo, let's solve. So in 1996, how much is it? So it is coming between them. So you can say, sir, this is 25. 25 है. And in 1999, this is how much? You would say, sir, 40. है कि नहीं? So percentage increase निकालना है. Percentage increase, that means 40 minus 25 divided by, compared to 1996, that means 40. है कि नहीं? अच्छा, 1996 से जाना है. 1996 टू 1994. सो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन पे कितना इंक्रीज हुआ फ्रॉम प्रीवियस ईयर? सो यू हैव टू डिवाइड बाय 25. ठीक है,
इंटू 100 कर दिया. क्लियर है? ओके. सो 1996 to 1999. So we are seeing the increase based on the first year. This is 1996. 1996 और रेफरेंस पे देख रहे हैं. So that means your year which will come at the geometry will be 1996. Okay. चलो इसको सॉल्व करें. So 25 4 is 100. So percentage increase कितना आएगा? So 40 minus 25 is 15 into 4, that is 60% increase. I hope this is clear. ठीक है? ठीक है. I hope this is cleared. Right, 60. और मान लो आपने एग्जाम पे गलती कर दिया. सपोज इन एग्जाम यू हैव डन व्हाट 40 minus 25 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100. ठीक है, मान लेते हैं गलती हो सकता है इंसान से. यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4. तो 2 5 जा करोगे, यहाँ पे आएगा कितना, तुम के साथ 75/2. ऑप्शन में है ही नहीं. ठीक है. सो एग्जामिनर इज वेरी काइंड. सो जनरली दे गिव यू द ऑप्शन विच विल अवॉइड यू टू डू मिस्टेक्स. ठीक है. तो कभी कभी हो जाता है ना, इन प्रेशर व्हाट हैपेंस इज दैट यू टेक द रॉन्ग थिंग. Understood? So that time you should take the help of the option. That's why I told you that always keep your eye on the options, because options give you the right answers. Okay, option will always give you the answers. Okay. So I hope this is clear. Let's see one more question of this, then we'll end the session. ठीक है, ये question complete करके we'll end it. चलो last question. For which of the following year the percentage rise or fall in production from the previous year is maximum for company Y? Company Y, they are talking about this red one. ठीक है, कौन से साल में मैक्सिमम और मिनिमम यू नो देयर वाज परसेंटेज राइज. सो इस पे क्या करेंगे, हियर यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज फॉर ईच ईयर. ठीक है. सो लेट मी सी आउट हियर. इट इज फर्स्ट आई राइट द नंबर्स. दिस इज 25, दिस इज 35, दिस इज अगेन 35. नो राइज नो फॉल. दिस इज हाउ मच, दिस इज 40, यू वुड से 40, यस, एंड दिस इज 50. ठीक है. तो सबका डिफरेंस लेके हम देखेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस हियर, यू वुड से सर देयर इज 10 डिफरेंस. यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, +5 +10. ठीक है. और यहाँ पे +10 का डिफरेंस है, +10 का डिफरेंस है. ठीक है. सो नाउ इफ यू सी दैट आई कैन से दैट आइदर देयर विल बी राइज इन दिस और दिस. है कि नहीं, ये या फिर इस पे राइज हो सकता है. ठीक है. और percentage change rise fall in the production of company. Okay, so question is that for which of the following years the percentage rise fall in the previous year is maximum for company Y. अच्छा, rise और fall दोनों सेम होने चाहिए. तो एक ही दिख रहा है ना मुझे, यहाँ पे दिख रहा है देखो, rise and fall should be same, maximum. ये दोनों में दिख रहा है 0. this is for which year, 1997. this is one thing that you can do it, or you can do what, percentage निकाल लो. so यहाँ पे कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर में 25 था, इंटू 100 किया. ठीक है, 4, तो कितना हो गया, 40% इंक्रीज. ये हो गया इंक्रीज. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे तो 0% होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज भी डिक्रीज भी ले सकते हैं. 0% मतलब ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ. ओके. सो राइज और फॉल का मतलब यही होता है, नॉट इवन इंक्रीजिंग नॉट इवन डिक्रीजिंग. नेक्स्ट देख लो, आउट हियर 5/35 इंटू 100, दैट मीन्स 7/100. ठीक है. तो दिस इज राउंड ऑफ कमिंग्स टू बी सपोज 1 7 30 14 पॉइंट समथिंग %. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे देख लो 10 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100. क्लियर है, 0 0 कैंसल्स, 25%. क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे भी. ठीक है. सो इफ दे लास्ट द मैक्सिमम इंक्रीज दैट हैज टेकन इन द कंपनी, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ. दिस इज द ईयर इस पे मैक्सिमम इंक्रीज हुआ 1996 पे. इफ दे से राइस और फॉल, ठीक है, राइस और फॉल इज मैक्सिमम मतलब ना ज़्यादा ना कम, दैट इज 0%, दैट इज ऑन द ईयर 1997. ठीक है. 1997 से 1998 और 1990 from 1997 till 1998 you have to see. So in this particular year you will see that 0% rise fall दोनों same है. That's why this will be the answer, that is 1997. Then if they ask that least तब क्या होगा, तब हो जाएगा आपका ये 1997 ही होगा आपका आंसर, लीस्ट भी वही होगा. ठीक है. क्लियर है. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. सो टारगेट 20,000 बैच 2.0 ऑलरेडी गोइंग ऑन. सो इफ यू वांट यू कैन एनरोल टू दिस बैच, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. So that's it. So these are few questions which you can get it in my Telegram group. So what is my Telegram group? So it's in the top you can see, but I'm writing it here for you. SUBHANKAR. ठीक है. Capital QUANTS and capital REASONING. Subhankar Quant's Reasoning. You join this group and you will get the PDFs. Okay. So that's it, my dear aspirants. Thank you so much for joining in. Okay. So take care, study well, and any doubt you have, you please comment down below. I will surely rectify it in the next class.
ठीक है, दिस इज अ प्रॉमिस. तो चलो, टेक केयर, सी यू एंड ऑल द बेस्ट. ओके.